Let's do a question. Try to solve this question. So it is based on titration. Copy the question. What is happening here? What is being added drop by drop? Sir, NaOH? NaOH. NaOH. कैसे समझ में आया कि उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया जा रहा है? सर हमको वॉल्यूम इसका दिया ना H3PO4 का. हाँ, तो मतलब वो fixed है. That is already present in the picture. Yes, that is already present in the solution, and you are adding NaOH in solvents. Concentration of NaOH is given. Concentration of H3PO4 is also given. The titration is carried out between H3PO4 and NaOH. H3PO4 is a weak acid, NaOH is a strong base. You are adding NaOH to a solution of H3PO4, which means that the volume of NaOH is changing as and when you are adding NaOH. Whereas the volume of H3PO4 is fixed. Which means that we can calculate the moles of H3PO4 present, or we can calculate the millimoles of H3PO4 present, because we have ml, that is milliliters of H3PO4 given to us. How many millimoles of H3PO4 are present in the solution initially? 5. 5, because 15 to 0.1 is 5. So 5 millimoles of H3PO4 are present initially in the solution. Now I start titration. And the first part 15,000 नहीं होगा. millimoles बोला ना, moles millimoles. बोलोगे तो divide by 1000. Okay. So now if I add NaOH, I'll see what happens. I'm adding 25 ml of NaOH, which is the first part of the question. 25 ml of NaOH add कर रहा हूँ, तो कितने millimoles of NaOH add किए? 2.5. 2.5 millimoles of NaOH have been added. 0.1 multiplied by 25 is 2.5. So you can write the reaction. ये सब देके रखा है मैंने. pK1, pK2, pK3 of H3PO4. So the first part of the question will be this reaction लिखा है मैंने. This is going to be the reaction. H3PO4 is a weak acid, तो उसको step by step dissociate करके दिखाना पड़ेगा. इसके लिए H2PO4 माइनस का सॉल्ट बनाना है इसका. So millimoles में काम कर रहे हैं हम लोग. How will you find out the pH of the solution now? Sir, moles of what? How will you find out the pH of the solution now? That is after this reaction is over. Just see, time t equal to t indicates that reaction is over. So you want to find out the pH at this point. What are things are present in my solution? Sir, H3PO4 and NH2PO4. So these are the things present. Because NaOH is the limiting reactant. So forget NaOH. So what is the formula that we are going to use now? pK plus log. pKa. So what is the nature of the solution? Sir, it is an acidic buffer. It's a buffer. Yes. So Acidic buffer. H3PO4 भी है और H2PO4 minus भी है.
एक कोई भी वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का मिक्सचर बफर कहलाता है. सो बफर का फॉर्मूला लगा देते हैं. What is the answer? That's something. So this was the first part. मतलब जब 25 ml of NaOH ऐड किया था. सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं. 50 ml of NaOH जब ऐड किया है तब क्या होगा? 50 ml of NaOH का मतलब क्या है? How many millimoles of NaOH have been added? 5. 5. Okay, these all are distinct cases. कोई भी केस का उसके पहले से कोई कनेक्शन नहीं है. Different points है ये सब. So these all are different subparts of the question. So don't feel that one is connected to the other. There is no connection between any two parts of the question. In JEE, whenever you see questions having parts, always remember that all parts are independent of each other. सब अलग-अलग treat करना है. अब 50 ml जब ऐड किया तो क्या होगा? कंप्लीट रिएक्शन. ऐसा होगा कि नहीं होगा? कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा तो 7 हो जाएगा. That means I have reached the first equivalence point when the volume of NaOH added was 50 ml. So this is the first equivalence point because I just have the products. Solution के साथ अंदर क्या है अभी? ऐसा है? Correct? This is the solution. Yes, sir. हम लोगों ने पहले एम्फीब्रोटिक स्पीशीज पढ़े थे जब सॉल्ट्स पढ़ा था. सॉल्ट्स के अंदर लास्ट पार्ट में वो था एम्फीब्रोटिक स्पीशीज. तो एम्फीब्रोटिक स्पीशीज आ गया यहाँ पे तो उसका पीएच का फॉर्मूला भी मैंने दिया था. कोई भी सॉल्ट जिसमें एम्फीब्रोटिक स्पीशीज हो उसमें सबसे आसान हो जाता है पीएच कैलकुलेट करना. If you remember, this was the value of this was the expression given for pH for any amphibrotic species. What is the amphibrotic species here? Sir, NaH2PO4. Just say H2PO4 minus. Don't say NaH2PO4. H2PO4 minus is the amphibrotic species. Okay, sir. तो सीधा एम्फीब्रोटिक स्पीशीज का फॉर्मूला लगा देंगे. कुछ सोचना नहीं है. एम्फीब्रोटिक देखते ही एम्फीब्रोटिक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. हाफ ऑफ pKa1 प्लस pKa2. क्वेश्चन में देके रखा है pKa1 pKa2. H3PO4 के जो pKa1 और pKa2 के वैल्यूज है वो देके रखे हैं. So this is the answer to the second part of the question. Kindly try the third part now. I have done first and second. I have shown you already. Try the third part. 100 ml जब add किया है. Start. We will. I mean, you all will finish third, fourth, and fifth. Start. I discuss after 7-8 minutes. 7 to 8 minutes later, I discuss. Finish third, fourth, and fifth.
Okay, let's go to the third part. 100 ml. So how many millimoles of NaOH have been added? 10. 10 millimoles, and there were 5 millimoles of H3PO4. Let's see how the reactions take place. So ऐसा चालू होगा. Now 5 millimoles of NaOH are still left, so they can react with this part again. तो इन दोनों आपस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे, तो ऐसा बनेगा. राइट, तो ये फिर से रिएक्ट कर जाएंगे ना आपस में ये दो, तो ऐसा बन जाएगा. So again we obtain an amphiprotic species. So amphiprotic species अकेला है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे. But now we have to apply pKa2 plus pKa3 upon 2. HPO4 2 minus है ना, तो pKa2 and pKa3 लगाना पड़ेगा. अगर H2PO4 माइनस होता तो pKa1 plus pKa2 by 2. राइट, तो ऐसा हो जाएगा. This is the third part. फोर्थ पार्ट में जाते हैं. फोर्थ पार्ट में क्या है? 125 ml of NaOH. मतलब क्या? How many millimoles of NaOH? Sir, 12.5. 12.55. 12.5 millimoles of NaOH. चालू करते हैं फिर से. ऐसा हो जाएगा. Now what will happen? Again NaOH is left behind, so NaOH has the capacity to react with NaH2PO4 again. तो रिएक्ट करेगा अभी NaOH और NaH2PO4, तो ये बनाएगा. वापस NaOH देखो अभी लेफ्ट बिहाइंड है थोड़ा सा. 2.5 millimoles of NaOH are still left behind after this reaction. So again that will react with Na2H2O4. क्या होगा अभी रिएक्शन इसके बाद? Na3PO4. So NaOH will react with Na2HPO4 to give Na3PO4. तो ये रिएक्शन हो जाएगा फिर. अब NaOH पूरी तरह से यूटिलाइज हो चुका है.
Now what will happen? How to calculate the pH of the solution? Sir, pH equal to pKa plus log of PO4 upon मतलब PO4 चार्ज के साथ माइनस और upon H3 sorry HPO4 2 माइनस. हाँ मतलब अब वापस एक बफर आ गया अभी हमारे पास, तो हाँ बफर आ गया, ये बफर है अभी हमारा. तो बफर का फॉर्मूला लगा देंगे. तो यहाँ पे देखो Na3PO4 के कितने मोल से और Na2HPO4 के कितने मिलीमोल से, तो वो डाल देंगे. तो ऐसा हो जाएगा. And the last part of the question, last part क्या बोलते हैं, 150 ml of NaOH has been added. 150 ml of NaOH का मतलब क्या हुआ? 15 millimoles. सर यहाँ पे एंड में सब खत्म हो जा रहा है बट फॉर्मूला कौन सा रहेगा समझ नहीं रहा. तो पहले ऐसा होगा, सेकंड रिएक्शन भी हो जाएगा बिकॉज NaOH अभी भी बाकी है. तो ये हो जाएगा, फिर वापस NaOH बाकी है. Now also we are left with some millimoles of NaOH. So again the reaction will continue. So ऐसा हो जाए. Now we have reached the third equivalence point because only products are there. अभी कोई बफर नहीं है हमारे पास. We just have the salt and water. So this is the third equivalence point of the titration. This is the third equivalence point of the titration. यहाँ तक आ गया सबको? हाँ सर. Tell me now, what are the components in the mixture? Na3PO4 and water. So Na3PO4 is a salt, yes or no? Yes sir. Yes sir. But does it contain any amphiprotic species? No, sir. है ही नहीं ना. हाइड्रोजन होना चाहिए ना एम्फीप्रोटिक स्पीशीज में. हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, यानी फॉस्फेट आयन है, इसमें कोई एम्फीप्रोटिक स्पीशीज तो नहीं है. तो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज वाले फॉर्मूले को भूल जाओ. बफर भी नहीं है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर है, तो बफर को भी भूल जाओ. अब क्या बचता है? क्या बचता है? बस Na3PO4. सर बस Na3PO. Which means what is that thing? What is Na3PO4? What is the nature of Na3PO4? Okay, what is the identity of Na3PO4? Basic salt. The basic salt. Exactly, it is a Hydrolysis salt. हो जाएगा. It is a salt of second category, like you said, it's a basic salt, which means that the cation comes from strong base and the anion comes from weak acid. तो second वाली category को देखो अभी. क्या था second वाली category का formula? pH is equal to 7 plus 1/2 pKa plus plus half log C. अब ये K क्या था और C क्या था पहले बताओ मुझे. K dissociation constant. किसका dissociation constant? कौन से एसिड का? A stands for acid, right? सर वहाँ पे लिखवाया था मैंने. weak acid. वहाँ पे HPO4.
C कौन and से ion of the acid का? salt. HPO4 2 minus. anion gas. मैंने बोला था कि K here is the dissociation constant of the conjugate acid of the anion of salt. So इस केस में conjugate acid of PO4 3 minus is HPO4 2 minus. तो इसका pKa चाहिए. And C क्या हैगा? Concentration of the anion of the salt, which is this. अब HPO4 2 minus का K का मतलब कहने से HPO4 2 minus का K is this given by this reaction. This is HPO4 2 minus का K. अब HPO4 2 minus का K is nothing but can I say it is the Ka3 of H3PO4? Yes. Yes, sir. Yes, sir. It is the Ka3 of H3PO4. तो मतलब ये हो जाएगा अभी ये 50 plus 150 नीचे क्या है? The total volume of solution. Total volume of solution 50 ml H3PO4, 150 ml NaOH. So total is 200 ml. Acid और base दोनों का वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा ना? .025 is 25 by 1000. So what is the answer? Sir, 11.7. Yes. Okay, is it clear to you now? Yes, sir. Okay. तो क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरा टाइट्रेशन का ये किया, अलग अलग टाइट्रेशन के केसेस देखे, एक ही टाइट्रेशन के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, that the calculations have been understood now. So now with this I assume that titration is clear. ये सम किए बिना टाइट्रेशन अधूरा था. ग्राफ्स वी हैव डन, बट जब तक सम नहीं करोगे, बिकॉज एग्जाम में कोई एक ऐसा यहाँ पे हम लोगों ने 5 पार्ट्स किए ना, तो 5 पार्ट्स तो कभी एग्जाम में आएंगे नहीं. एनी वन पार्ट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. तो कोई भी एक पार्ट आ सकता है ना 5 में से. दैट इज व्हाई इट दिस. सर बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. हाँ, टाइट्रेशन में तो एसिड और बेस ही आता है ना, और मतलब इस चैप्टर के टाइट्रेशन में तो एसिड और बेस ही है. रेडॉक्स टाइट्रेशंस आर नॉट इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बफर्स पे और टाइट्रेशन से. तो बफर्स तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, टाइट्रेशन आल्सो वी हैव कवर्ड. बट जेई एडवांस में टाइट्रेशन के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर. और जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोगों ने अभी किया, जिस टाइप का आज किया. तो ग्राफ पे ज्यादा फोकस एडवांस वाले डालते हैं, मेन में ग्राफ पे इतना फोकस नहीं है. बट द ग्राफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो ग्राफ लास्ट लेक्चर में मैंने करवाए थे वो दिए नहीं है अच्छे से कहीं पे, इसके लिए आई हैड टू डू इन डिटेल. पीपल हु आर ओनली फॉर मेंस और द पीपल हु आर अटेम्प्टिंग ओनली जेईई मेन may leave the entire thing which was taught in the previous lecture. बट आज वाला पार्ट छोड़ो मत. आज जो पढ़ा है वो
रहेगा, मेन में भी एडवांस में। Okay, now I want to talk about a concept of titration, which we will be using in the next chapter. But since we are doing titration, I want to talk about this. See, ये pH वाला जो पार्ट है वो आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है, that is okay, that we have done. But अगर मोल्स के बारे में हुआ, यानी pH को छोड़ के अगर मोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स ऐसा कुछ हुआ, तो कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी आपको लर्न. Since we are in titration, we should be able to use two main concepts. First, this concept GEQ is equal to moles into MF. Yeah, concept बहुत important. Another concept is what? Another concept is molarity into liters is equal to moles. Next, normality into liters is equal to GEQ. And okay, now these are the important things that we'll be using again and again. पता तो सबको है, बट फिर भी ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं टाइट्रेशंस में, तो इसके लिए ये मैंने चार्ट दिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बहुत लोगों को पता नहीं होगा, कोई भी ऐसा रिएक्शन अगर है तो उसमें ये होता है. ये फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे हम लोग henceforth. मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके लिए नीचे लिखना पड़ रहा है. एक्चुअली एक साथ लिखना चाहिए पूरा ये, बट स्पेस नहीं है इसके लिए ऐसा. So these are the things that we will need in mole concept, also in ionic equilibrium also we have done, and also in volumetric methods. तो ये जो भी है ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वाला. ओके, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट ये है कि we
need not balance any reaction by using formula 5. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेसिक्स, प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला. थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे हो गया सर. So write down this thing properly. Okay. And कोई रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है जब ये फॉर्मूला 5 लगाएंगे. Now I'll give one question, try to solve that. Using this concept that we have done this one. Question solved. Question is this. Question. Start.
Start solving this question. सर एक लाइन ऊपर करेंगे. हाँ, start. जो यू कंसेप्ट सिखाए हैं उनके बेसिस पे करो अभी जो किया. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए ना. तो नीचे करेंगे एकदम बॉटम पे. यस सर, थैंक यू. Okay. What all things are given? NaHC2O4. Fine. So NaHC2O4 is reacting with KMnO4. ऐसा है. ओके, क्या किया 100 ml of NaHC2O4 required 50 ml of 0.1 mol KMnO4 solution in acidic. तो ये रिक्वायर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड?
कंप्लीट रिएक्शन के लिए एग्जैक्टली मींस रिएक्शन हुआ है, रिएक्टेड। ओके अभी we will do concept of gram equivalence। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोई जरूरत तो नहीं है। सो GeQ ऐसा करेंगे। GQ is moles into n factor। So moles of NaHC2O4 is equal to GQ of KMnO4 reactant। So moles of KMnO4 ऐसा हो जाएगा। मोल्स ऑफ NaHC2O4 क्या है? 100 ml of NaHC2O4। 100 ml of NaHC2O4। तो लीटर्स में 0.1। molarity of NaHC2O4 is unknown, so let the molarity be something x। the molarity into liters is moles, right? So 100 ml into molarity अगर x मान लो तो ये हो जाएगा moles of NaHC2O4 reacted, and NF is given to in the question as 2। NF of NaHC2O4 is given as 2। तो डाल दिया यहाँ पे 2 is equal to moles of KMnO4 reacted। again moles of KMnO4 कैसे आएगा? 50/1000 into 0.1। so 50/1000 is liters, 0.1 is molarity। लिखे भी चल जाएगा ना? हाँ बिना 1000 लिखे भी चल जाएगा। हाँ तो मिली मोल्स में करना पड़ेगा ना, फिर मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा सब कुछ। So this is the number of moles of KMnO4 reacted, 50/1000 into 0.1, and the value of n factor is given as 5 in the question। तो यहाँ पे NF डाल दिया 5, तो यहाँ से molarity of ये आ जाएगा। So what is the value of x? 0.125। हाँ 50 into 0.1 is 5, 5 times 25, 25/2 is 12.5/100, that is 0.125 molar। तो ये क्या है? This is the molarity of correct? यहाँ तक हो। अब आगे क्या? What is the volume of 0.1 molar NaOH required by 100 ml of NaHC2O4? अब रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? NaOH and NaHC2O4। अब ये रिएक्शन तो आसान है, similar to what we have done already today। so Na2C2O4। सर बट पहले माइनस करेंगे ना उसमें, मतलब जो मेरे मोल्स ऑफ NaHC2O4 है उसमें माइनस करेंगे ना। क्या माइनस करेंगे? सर तो अलग रिएक्शन है ना। हाँ सर बट पहले वो KMnO4 से रिएक्ट कर रहा है उसके बाद NaOH नहीं बट ऐसा नहीं बोला है ना कि उसके बाद हो रहा है, दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये तो अलग है ना, तो अलग रिएक्शन है। ओके दे हैव नॉट मेंशन्ड हियर कि इसके बाद ऐसा हुआ है।
What is the volume of this required by this? They did not say किसके बाद हुआ है. So यहाँ पे क्या करेंगे अभी? G EQ of NaOH again moles into NF. NF क्या है? Sodium hydroxide का 1. We have done this already in thermodynamics, right? Now coming to the NF of this. अब देखो रिएक्शन को अगर आप देखोगे then you will understand the value of NF. 1 NaHC2O4 में एक ही H प्लस है जो जा रहा है ना. Yes. क्या कॉन्जुगेट बेस बना रहे हो तो C2O4 2 माइनस है. That is why you are getting this. तो एक H प्लस हट गया मतलब क्या? N factor is 1. NF1 हो गया. तो NF 1 करेक्ट. क्वेश्चन में बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलारिटी इज 0.1. सो 0.1 मोलारिटी, वॉल्यूम को मान लो V लीटर्स. मोल्स ऑफ NaHC2O4. NaHC2O4 के का मोलारिटी इज ऑलरेडी नोन टू मी. इट इज 0.125. and volume is given in the question as 100 ml. 100 ml of NaHC2. बट लीटर्स में लेना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने इस वाले V को भी लीटर्स में लिया है. तो V जो आएगा वो लीटर्स में आएगा. यहाँ से if you solve answer will be 0.125. Therefore V is equal to, correct? Clear? मैंने माइनस करके ले लिया था. Hmm? मैंने माइनस करके मतलब. अच्छा, that is why I got a wrong answer. हाँ. Name of the compound. Okay. Sodium. Sodium तो है ही ना. अब C2O4 होता, I mean Na2C2O4 होता तो बोलते सोडियम ऑक्सलेट. बट ये सोडियम ऑक्सलेट तो नहीं है, अभी NaHC2O4 है, राइट. तो सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सलेट. और सोडियम बायऑक्सलेट. This is better. वो Na2 वाला बायोऑक्सलेट था. This one only. Sodium oxalate is Na2C2O4. Just sodium oxalate. सर बायोऑक्सलेट कौन सा था? यही वाला है, यही वाला. जैसे बाइकार्बोनेट इज HCO3 माइनस ना, वैसे ही. ओके सर. बट दिस इज बेटर. यही वाला ज्यादा यूज होता है. तो क्या देखा यहाँ पे हम लोगों ने कि ये जो रिएक्शन पहला था ये बैलेंस नहीं किया हम लोगों ने, और इसके प्रोडक्ट्स भी नहीं मालूम हमें. देयर आल्सो वी कुड सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज़ वी हैव यूज्ड ग्राम इक्विवेलेंस. Keep this in mind. This technique is going to help us in the next chapter. पूरा चैप्टर इस पे चलेगा ग्राम इक्विवेलेंस पे, इसलिए मैंने अभी ग्राम इक्विवेलेंस इंट्रोड्यूस कर दिया.
Try another one. सर किसी एसिड का अगर NF1 होता है तो वो मोनोबेसिक हो जाता है ना? Monobasic. Okay. ये वाला करो. Start.
क्या आंसर? What is the reaction? Sir, Na2CO3 plus 2HCl gives 2NaCl plus CO2 plus H2. That is the second equivalence point. No? First equivalence point पूछा है. So उसके लिए NaCl plus NaHCO3. Yes, this is the first equivalence point. So if you remember in the previous lecture we did the graph based on this. याद है? ऐसा क्या था मैंने? ऐसा. So this is the first equivalence point. So T is equal to 0. So X moles. T is equal to T. यहाँ पे 0. Sir, question में मांगा क्या उन्होंने? How many grams of Na2CO3 should be? Okay, sir. 10 millimoles of product at first equivalence point. 10 millimoles मतलब 10 upon 1000, so that is 0.01 moles. Here also 0.01 moles. HCl की शुरुआत में कितने मोल्स है? 200 into 0.1, 20 millimoles. So 20 upon 1000. ऐसा हो जाएगा. X minus X 0.02 minus X. ऐसा हो जाएगा. Then अगर यहाँ पे 0.01 चाहिए तो मतलब X भी 0.01 होगा. Because coefficient ये 1:1 है. Therefore, X is equal to 0.01 moles. So moles of Na2CO3 required मतलब हमेशा याद रखो complete reaction. Therefore, grams. 1.06. Yes. तो इसके लिए फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट बोल दिया था. Molar mass is 106. So 1.06 grams. Last question for the day and then we stop. But अभी हम लोग GOC का क्वेश्चन करेंगे. Since you have already started with a wonderful chapter, so let's see a conceptual question. सर इतना वंडरफुल नहीं है. आगे चल के होगा वंडरफुल. और फिर जब पीरियड में आ जाते हैं नाइट्रोजन, जब सेकंड पीरियड में आ जाते हैं नाइट्रोजन लग जाता है, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, एक्सेशन हो जाते हैं. So question is this.
This is the question. So we will start. इसमें क्या students गलती करते हैं? I will point out that. That is why I am taking this question. First of all, ऐसे लिखना है आपको सर्कल के बदले में. कुछ लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर लगा देते हैं. ना, if you put this, तो ये गलत है. हाँ, क्योंकि ये जो है ना, ये कॉमन टू बोथ है. दिस इज कॉमन टू बोथ बिकॉज दिस आर फ्यूज्ड रिंग्स. तो यहाँ पे आप इसका अपना नहीं डाल सकते. वैसे भी ये कार्बन फिर पेंटावैलेंट हो जाएगा. So that is the first mistake. Now we can start drawing the resonating structures. Always remember, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी जहाँ पे लोन पेयर है या जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है होता है, यानी वहां से आरो को घुमाना होता है. इसके लिए नेगेटिव चार्ज जहाँ पे है वहां पे स्टार्ट. तो वहां पे स्टार्ट. अब क्या हो गया, यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज को मैंने घुमा दिया तो ये चीज इधर आ जाएगी, क्योंकि कार्बन कभी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता है. What will happen here? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा. Is this fine? Yes, sir. Okay. वापस नेगेटिव चार्ज है तो उसको ही घुमाना है. घुमाओ. अब क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे चला आएगा. Yes. Yes, sir. But then the moment this comes here, तो Negative. क्या करना है? Pi bond breaker. हाँ, तो क्या होगा? सर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाएगा. और वे ब्रेक होगा. ऐसा हो जाएगा. हाँ सर. यस सर. तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ऐसा. सर यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे ना. हाँ, exactly. That is why I took this question. यहाँ पे देखो अभी क्या होगा. इसको मैं अगर ऐसे करूं, this is one possibility. यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा. ऐसा हो जाएगा. Then this one can go here and this one will go here. ऐसा हो जाएगा. Correct? Yes, sir. Then this one can come here. तो फिर ये उठ के इधर चला जाएगा. No carbon can be made pentavalent. That is why we are doing all these things. सर इसके बाद डायरेक्टली वही बना दो. नहीं, शुरुआत में कुछ भी डायरेक्टली नहीं करना चाहिए उसे. करेक्ट. देन ऐसा हो जाएगा. फिर अब इसको वापस ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. शुरुआत में ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से किया था ना, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया. व्हाट अबाउट दिस वन? यहाँ से यहाँ राइट. से ये और राइट निकल जाएगा. पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ये राइट में जाता तो. सो ऑल पॉसिबिलिटीज विल हैव टू बी लुक्ड एट. तो इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा रहेगा. एंड नाउ दिस विल कम हियर. तो ये इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा.
सर वहाँ बॉन्ड मिस कर दिया आपने पर। हाँ सर ऊपर and वापस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, so can stop. So these are all possible resonating structures. Now the question is, how many resonating structures are there? Count. इसको भी काउंट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ के बाकी यहाँ से चालू करते हैं, which is wrong. All have to be counted. So 9 resonating structures. कुछ लोग लिख देते हैं 8. सर Okay, बट don't count this one. स्ट्रक्चर्स के नंबर मतलब कितने हैं? हाँ मतलब पूछते नहीं ना ऐसा क्वेश्चन कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछा था जेई एडवांस में, सेम क्वेश्चन, ओके एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा था, बट हाँ वहां पे था द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस स्पीशीज इज डैश, तो आंसर लिखना पड़ेगा 9.06 इंटीजर टाइप। सर थोड़ा नीचे कीजिए। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। हो गया सर। लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, टेल मी वन थिंग, इन स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा जहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है कि जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है? सर ऑक्सीजन पे जहां पे नेगेटिव जहां चार्ज पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं कोई रिएक्शन करवाऊं जहां पे रिएक्टिविटी की बात करूं, तो रिएक्शन कहां से होगा, कार्बन से कि ऑक्सीजन से? ऑक्सीजन कार्बन से। बिकॉज अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो रिएक्ट आसानी से नहीं करती है। तो अगर आपको नेगेटिव चार्ज को रिएक्ट कराना है तो क्या करोगे, कहां से रिएक्ट करवाओगे? कार्बन से। रिमेंबर दिस। सिमिलरली इसका भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको मैंने बोला इससे रिएक्ट करवाओगे, रिएक्शन में ऐसे आगे बढ़ोगे कि रिएक्शन में ऐसे आगे बढ़ोगे? सर बट करा तो दोनों से सकता है ना? नहीं होगा ना फिर, क्योंकि प्रोडक्ट बना नहीं पाओगे, कुछ होगा नहीं आगे यूजफुल, इसके लिए वी डोंट गो अहेड विद दैट। सर लेकिन कोई ऐसी स्पीशीज हो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है तो वो तो O- के साथ जाएगी ना? मतलब दे दिया तो फिर क्या आई डिडंट फॉलो। सर मतलब वो जो सेकंड रिएक्टेंट होगा उस पर नहीं डिपेंड करेगा हम किस एलिमेंट से रिएक्ट करवा रहे हैं रिंग। No, that doesn't have any significance. You are comparing the reactivity of these two, no? तो हमेशा this will be more reactive. Sir, but actual compound तो resonance hybrid में exist करता है ना? Exactly. Since actual is resonance hybrid, तो react इसके लिए वो यहाँ से prefer करेगा react करना, और प्रोडक्ट आपको ऐसा ही मिलेगा जो यहाँ से रिएक्ट कराने के बाद हो। That is why we always deal with major products. Minor तो कुछ भी बन सकता है। Nobody is bothered about the minor one. Major मतलब क्या? जो सबसे ज्यादा yield होगा, जिसका ज्यादा yield किस पर डिपेंड करेगा? जो चीज ज्यादा रिएक्टिव है उस, हाँ, तो इसके लिए यहाँ से रिएक्शन कराओगे, यहाँ से भी रिएक्शन कराओगे, तो जो यहाँ से रिएक्शन के बाद आएगा दैट इज गोइंग टू बी द डिक्टेटिंग वन। तो हमेशा याद रखो, नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे है तो वहां से ही रिएक्ट करवाओ, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो स्टेबल हो जाएगा, उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन है कार्बन से रिएक्ट करने का तो कार्बन की तरफ से रिएक्ट करना है। सर किसी केस में भी अपोजिट नहीं हो सकता? नहीं, सर अगर मैं H प्लस भी दे दूं बाहर से तब भी नहीं? मींस अगर मैंने वो O माइनस वाले स्ट्रक्चर में H प्लस मैंने सेकंड रिएक्टेंट की तरह से दिया, OH बन जाएगा। तो फिर दोनों ही वापस कन्वर्ट हो जाएंगे ना, अल्टीमेटली दोनों ही फिर ये हो जाएंगे, तो आइडेंटिकल हो गए। फिर दोनों से ही बनेगा ना। हाँ H प्लस दे दोगे तो दोनों से ही बनेगा। सर इसलिए मतलब मैंने बोला कि O माइनस पे भी चलता है। हाँ, वो तो देखो अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या होगा वो डिपेंड करेगा ना, बट आई एम सेइंग अगर नेगेटिव चार्ज को अटैक कराना है कहीं पे तो देन डेफिनेटली कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा दैट विल अटैक। तो यहां से रिएक्शन करवाओगे। और यहाँ पे अगर H प्लस डाल दिया तो ऐसा हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। Now what happens is this undergoes a rearrangement, तो अल्टीमेटली वही मिलेगा, वापस ये H टूटेगा और वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, and again from the solution this will accept H plus, तो फाइनली ये मिलेगा। सर बट इस केस में जो O माइनस है वो डायरेक्ट हो रहा है तो वो ज्यादा प्रेफरेबल नहीं हो जाएगा? मींस फिर जहाँ पे मेरे पास O माइनस है उसमें डायरेक्ट H प्लस रिएक्ट कर रहा है। हाँ, अगर है तो ठीक है ना, डिफरेंस नहीं पड़ा ना एनर्जी। डिफरेंस नहीं पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ, कैसे भी करो अल्टीमेटली यही बनेगा। यस, बट जहां डिफरेंस हो सकता है ना वहां पे स्टार्ट विद कार्बन ओनली। यहाँ पे जो डिफरेंस बॉन्ड है अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड, दैट यू विल लर्न ये स्टेप मैंने क्यों किया। बट व्हाट आई एम सेइंग इज अगर है कोई रिएक्टेंट जहाँ पे नेगेटिव चार्ज चाहिए तो कार्बन वाले नेगेटिव चार्ज को ही चूज करना है। अल्टीमेटली क्या होगा वो बात की बात है, बट व्हेन यू स्टार्ट द रिएक्शन ऑलवेज रिमेंबर कि नेगेटिव चार्ज जहाँ पे कार्बन पे होगा वहां से अटैक करवाना है। ओके, चलो बाय, थैंक यू। थैंक यू। बाय सर।